and it's a dream, literally, right? Like, look at this man. He is the stuff dreams are made of. Every man wants to be him. And yes, there was a greed. We do have a version which will never come out, जिसमें काफी लंबा रोमांस चलता है. But fact is this, सारी कहानी का जो मूल है, Keeping the film in mind. Keeping the film in Yes, mind. please. Not just the two Amrita is actors. really worried. Our producers are really worried. It's not the version that you think. Not the one you think. No. I saw her expression. I was like, I have to jump in for Amrita. But the fact is this, that when you take that challenge of they subverting the idea of romance and where a marriage ends, the drama begins. And that's where Haq starts with. It comes down to two things: a man's belief in what he wants or he believes in, and a woman's right to dignity and her self-respect. And these are basic fundamental questions in every relationship of a marriage going right or wrong. Very small things at times which keep building up over years. And that's the journey these guys created. And what I love most is that what you saw in the song, right, Kabul Hai by Vishal Mishra, which is absolutely amazing, it's magical, is the fact that they have condensed, being the seasoned artists they are, that a decade of romance into those few minutes before the drama blows up. That's them. And वो खूबसूरत है. The word is खूबसूरत. मजा आ गया. Just one more thing, sir. Supern, please हमें बताइए, सेंसिटिविटी को जो यहाँ है, ये कॉमन या कानून जो सवाल है ना, यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है. उसको सेंसिटिविटी को रखते हुए सच्चाई के साथ उसको लोगों तक प्रेजेंट करना, कितना डर लग रहा था कि इस पे तो बवाल मचेगा. देखिए, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक, आई थिंक जब सिर्फ एक बंदा काफिया बनाई थी तब डर ज्यादा था. उससे आई थिंक हमको जो सपोर्ट मिला एंड रियलाइज किया कि ऑडियंस चाहती है कि इस तरह की कहानियां बने. जब माय राइटर रेशु नाथ हुज हियर, वी स्टार्टेड राइटिंग एंड रिसर्चिंग फॉर द फिल्म. आवर एंटायर स्ट्रेंथ केम फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज अ फिल्म दैट नीड्स टू बी मेड एंड टॉक्ड अबाउट. बिकॉज ये मुद्दे, जैसे कि इमरान ने कहा, सालों से चलते आ रहे हैं और अब तक है उतने ही रेलेवेंट. एंड इट्स टाइम वी स्टार्ट हैविंग कन्वर्सेशंस, स्टार्ट ब्रिंगिंग देम आउट, and we come from a place of honesty or from a place of love and respect for all our brothers and sisters. And when you come from that space, audience instantly सूंघ लेती है कि आप बना क्या रहे हैं और कहानी में सच्चाई कितनी है. So we have spent 3 years in researching and writing this film to bring it to you. वाओ. और इतनी क्लैरिटी के साथ जब कोई काम किया जाता है, इतने पैशन के साथ किया जाता है, तो उसको वही तालियां सीटियां मिलती हैं जो यहाँ पे अभी बज रही थी. 7th is when we'll get to see the film in theaters. And ladies and gentlemen, now it's time to invite on stage someone really. हीरो कौन बोल रहा है? आपका भी नाम आ सकता है. जी हाँ. हमारा नाम ही ओके, नहीं लिया. सबसे पहले शिल्पा मायापुरी जी से. अरे इधर ही है. शिल्पा मायापुरी जी से है ना? Okay, there she is. Yami, this one's for you. Some people say you've become that face of nationalist cinema. Does that label bother you ever? आपने लेबल लिखा होगा तो मुझे तो जैसे आपको ठीक लगे. लेबल है, मुझे पता भी नहीं है. आई डोंट नो. आई थिंक अगर है तो लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना. ये नहीं तो कल कुछ और लेबल, फिर कुछ और, परसों कुछ और था, पहले कुछ अंडररेटेड था, उससे पहले कुछ और था. तो इट कीप्स शिफ्टिंग. तो मैं वो सब नहीं समझती हूँ. आई बिलीव दैट जो मौका मुझे मिल रहा है जिन कहानियों को कहने का, उनका अपना वजूद है, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है और ज़रूरत है एंटरटेनमेंट के माध्यम से. वरना हम डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते थे. हम एक एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं और जहाँ पर हर तरह की ऑडियंस है, Tier 1, Tier 2, Tier 3. कोशिश रहती है जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों को एक साथ जोड़ने की, कुछ नया, कुछ फ्रेश कहानी हर बार कुछ कहने की. तो अगर आप कहानी को देखते हैं और आपको अच्छा लगे तो वो अच्छी फिल्म है. अगर आपको कुछ और आइडियाज़ दिमाग में आए, then you're a different kind of audience and I respect that also. That's fine. But audience ने तो मुझे कभी भी नहीं कहा. I'm very in service of them. आपको लगे तो कोई बात नहीं, अगली बार कुछ और चिट में लिख देना. Thank you so much. But I appreciate. Thank you. Okay, so this next one is from Mohit, Filmi Mantra से. Mohit sir, किधर हैं आप? How are you? All good? Okay. So I'm doing the honors आपके behalf पे. Okay, Vartika, this one's for you. Haq is a very very strong social और emotional core वाली film. काफी ज़्यादा bold choice है ये. So did it ever feel daunting कि मैं इस film के साथ debut करने जा रही हूँ अपना बड़ा सा? I think
मोहित जी, द फैक्ट दैट काफ़ी बोल्ड चॉइस है और बहुत ही अनकन्वेंशनल फिल्म है और काफ़ी एक सच्चाई की कहानी है और मुझे लगता है कि यही एक वजह थी जो मुझे कन्विंस किया, जिसने मुझे कि मैं इस फिल्म को करूँ और इस फिल्म का हिस्सा बनूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक लेगेसी की फ़िल्म है और कुछ सालों बाद जब हम पीछे देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे बहुत गर्व होगा कि मैं इस कहानी का हिस्सा रही हूँ। Thank you so much. So, Punch sir, this one's for you. Harshita from Bollywood Bubble. She wants to know कि आपके हिसाब से लोगों के लिए वो एक टेक अवे क्या होगा हक का जब वो 7 नवंबर को इसको देख के निकलेंगे थिएटर से? हाय अर्शिता, आई थिंक लोगों का टेक अवे ये होगा कि आई थिंक कुछ सालों बाद फिर से एक बहुत ही गजब का ड्रामा आपको देखने को मिलेगा पर्दे पे, जहां दो दिग्गज एक्टर्स आर गोइंग फॉर द जॉगुलर। इसको मैं हिंदी में कैसे बोलूं, मतलब थामा बन जाएगा, बट अपना अपना गला काट रहे हैं या एक दूसरे का गला काट रहे हैं, बट राइट हमारी शूट ऐसी होती थी। सर मैं समझ गया कैसे होती थी, बट हाँ ऑफ कोर्स नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मेरे पैकअप के बाद आप कुछ और की शूटिंग कर रहे हो तो मुझे पता नहीं। तुरंत करेक्ट कर दिया. Okay, Imran sir, this one's for you. Snehil from ABP. Snehil? Hi. Yeah. Okay. Haq touches a raw nerve. And Imran, as a Muslim actor, did you feel an added weight or responsibility taking on a film like this? जब मैं ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो पहले तो आई सी इट एज एन एक्टर, और इस फिल्म में पहली बार मुझे एक मुसलमान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लेके आना पड़ा, बिकॉज अ सब्जेक्ट लाइक दिस, गोइंग बैक, जो लैंडमार्क केस था उस वक्त, पूरा देश एक तरह से दो हिस्सों में बट गया था. एक था रिलीजन और पर्सनल फेथ के साइड में, एक था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सेक्युलर राइट्स की तरफ. बट मुझे ये देखना था कि इस फिल्म में क्या डायरेक्टर और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस्ड है, अनबायस्ड है, न्यूट्रल है. तो उसका शॉर्ट आंसर है हाँ, इट वाज वेरी न्यूट्रल. एंड मैंने ये देखा कि ये ऑब्वियसली जब फिल्म देखकर लोग बाहर आएंगे, आई डोंट नो कि वो उनका ओपिनियन क्या होगा फिल्म को लेकर. आई नो दैट मोस्ट ऑफ देम विल फाइंड इट एक्सट्रीमली बैलेंस्ड. एंड एक जो चीज़ निकल के बाहर आती है वो है प्रो विमेन. ये चीज़ मैंने ली फिल्म से कि इट्स द सर्टन सोशल अवेयरनेस, इट इज़ अ प्रो वुमन फिल्म. एंड मेरी कम्युनिटी के लिए आई फेल्ट दैट दिस इज़ from a liberal Muslim's point of view. I think this is a great piece of work. Suparn, the entire team has made a very good film, and Muslims should really come and watch this film because you will connect with it in a very different way. That's what I feel. मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इमरान के बारे में कि जब मैं इमरान के पास फिल्म लेकर गया था, आई रियली मतलब चाह रहा था कि ये फिल्म करे, बिकॉज एक होता है कि ये जिस लेवल के स्टार है और जिस लेवल के एक्टर है, ही नेवर लेट इज स्टारडम एक बार भी इंटरफियर इन द स्क्रिप्ट प्रोसेस. इनफैक्ट इन्होंने इतना निडर होके मुझे और आई थिंक पूरी टीम को वो दिलासा दिया कि गो ऑल आउट, बिकॉज अब्बास का कैरेक्टर इतना कठिन है. इट्स अ वेरी बैलेंस्ड लाइन जहां आपको ग्रे रहना है, वेयर ऑडियंस आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझे. ब्लैक एंड व्हाइट के चक्कर ही नहीं है. देयर इज नॉट अबाउट कौन सही है कौन गलत है, दोनों अपनी तरीके से सही है. एंड टू हैव एन एक्टर एट हिज पीक टू काइंड ऑफ गिव दैट नुआंस, आई मीन ऑनेस्टली इट्स बीन अ ब्लेसिंग टू हैव इमरान इन द फिल्म. Wow. ANI से नीरज गुप्ता साहब ने यहाँ पे सवाल है. This is for अमृता जी, and he's saying कि for you as a production. Is she here? Shujita. Shujita. Yes. Hi Shujita. I'm a person who goes by my instinct. जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे कहानी अच्छी लगती है, रोल अच्छा लगता है और लगता है कहानी कहनी चाहिए, ना सिर्फ नाम के लिए कि अच्छा ये एक इसमें एक बहुत एक कॉमन टर्म है जो हम एक्ट्रेसेस को यूज़ करनी पड़ती है. ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल किरदार है, हमें बोलना पड़ता है, हमें अंडरलाइन करना पड़ता है. मैं इसमें विश्वास नहीं करती. मुझे लगता है अगर वो सब, हर एक की अपनी एक जर्नी होती है, जैसे हमारी लाइफ में आपकी और मेरी एक सर्टन जर्नी रही होगी, वैसे ही हर किरदार की भी एक जर्नी है. जो मेरी फिल्म में किरदार है शाजिया, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ये है कि
पब्लिक डोमेन में एक सर्टन सेक्शन रहा है उनकी लाइफ का, पर मैं उनसे कभी ऑफ कोर्स मिल नहीं पाया, देयर इज़ नो पर्सनल इंटरेक्शन। तो हमेशा सोचती हूँ रिवर्स में कि किस तरह की उनमें हिम्मत होगी या ताकत होगी कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और आप इतने आगे तक गए कि उसका रिपल इफेक्ट आज तक एको करता है, सिर्फ उनके क्षेत्र में ही नहीं बट बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ ऑल्सो एंड इन सो मेनी अदर पॉलिटिकल इवेंट्स। तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डू यू नीड? तो जब कभी कभी फिल्मों के माध्यम से ऐसी कैरेक्टर्स से आप रूबरू हो जाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता कि अच्छा ऐसे भी आप, इस तरह की भी करेज होती है, इस तरह की भी हिम्मत है। और अगर मौका मिलता है, विच आई कनेक्ट विद योर नेशनलिस्ट क्वेश्चन ऑल्सो, टू टेल सच स्टोरीज, टुडेज स्टोरीज, चाहे आर्टिकल 370 हो, विच इज़ नॉट अबाउट माई कैरेक्टर, इट्स अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट, इसीलिए शायद लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इन कहानियों के साथ, क्योंकि आप महसूस करते हैं। एक होता है फैंटेसी फिल्म जो विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यू नो, बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन के परे और कुछ ऐसा जो आपने सोचा ना हो, और एक है विच आर क्लोजर टू रियलिटी, और लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह की फिल्मों को। तो अगर मिलती हैं ऐसी कहानियाँ, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप प्लीज़ ये फिल्म देखिए क्योंकि इट्स अबाउट दिस वुमन एंड दिस मैन, देयर रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट। नहीं, कहानी में अगर दम होगा, कहानी अगर अच्छी होगी, स्क्रिप्ट अच्छी होगी, डायरेक्टर में पैशन और टीम में इंटेंट होगा, मुझे उन लोगों के साथ जुड़ना है, मुझे वो कहानियाँ बनानी है, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑडियंस है। ऑडियंस को फिल्म पसंद आनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए कि हमारा वक्त, हमारे पैसे जो हमने इस फिल्म में एक तरह का खर्च किए, इन्वेस्ट किए, वो वर्थ था, एंड वो बने वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म के लिए। आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स इन हैड आवर जर्नी, इट्स वर्कड बेसिस दैट। तो बस, और कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है आंसर में, पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। All right, we'll take two more questions, okay? So this is Sejal ji, दैनिक भास्कर से। Hi Sejal, how are you? Okay. So वर्तिका, ये आपके लिए लखनऊ जो है वो आपका होम ग्राउंड है ऐसा बोला जा रहा है। So life, did it come like a full circle जब वहाँ पे आपने इसकी शूटिंग की? How was it shooting with this entire team and of course लखनऊ की बात? सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का शूट लखनऊ में होना है, एकदम से मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैंने पैजेंट के लिए पहली बार ऑडिशन दिया था वो लखनऊ में था, और वहीं से मेरी एक जर्नी की शुरुआत हुई थी और मैं बॉम्बे आई थी, और फिर अपनी एक नई जर्नी के लिए मैं वापस से फिल्म के ज़रिए ही शुरुआत कर रही हूँ। इससे बेहतर तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। इट्स अ वे ऑफ यूनिवर्स टेलिंग मी दैट यू नो व्हाट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। सो या, एंड वर्किंग विद सच वंडरफुल पीपल, और मेरे खुद के शहर में मुझे तो बस लग रहा था कि ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है और कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। सो थैंक यू। Lovely. Thank you for that question. Thank you for the response. Okay, Divya ji from Just Too Filmy. Hi Divya ji. Imran sir, this one's for you. What's that one moment on set that stayed with you and it will always be with you? I think the final monologue, which gave me a lot of sleepless nights, and I used to haunt both Super and even Yami. Like, this is a 7-page monologue you've given me. What if I screw up on the 20th line? Do I have to go back and do it again? And Yami has done, I think, a couple of monologues. You played a lawyer. You played a lawyer. तो ये, I think, ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी एक वकील का कैरेक्टर प्ले नहीं किया ऑन स्क्रीन। एंड आई जनरली जब मैं कैरेक्टर्स देखता हूँ एक स्क्रिप्ट में, if it's challenging, if it gives me sleepless nights, I go head on into it. So I'm very grateful that they came to me for this. और I think वो scene था जो final था. I think we both did it in one take finally, and like the pages and pages of lines. But very Reshu, fantastic lines. I think that is something that's a takeaway. That जब आपको ऐसी अच्छी lines दी जाती हैं, it just becomes, it's fire on set. You know, when he's saying those lines, it's brilliant, and that is actually a takeaway. जब आप देखेंगे film, that final thing will be. My family saw it and they were like numb and they were crying after they left the film. So that's what those two monologues do. Wow, thank you for that question. Amrita ji, I'll come to you. लेकिन आपकी फैमिली के रिएक्शंस और आपके क्या रिएक्शंस थे? दूसरा सवाल, परमिशन के बारे में, इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है उसकी परमिशन के बारे में बात हुई थी, तो क्या परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी फिल्म के बनाने से पहले? I can answer that. So basically, like I just said, हमारी फिल्म एक fictional story है और many true events पे based है, and you know, like, and there have been many women before us in the 80s and the 90s
who've really been courageous and have fought this battle. And really, the film is inspired from many of these true events. राइट एक्चुअली उसी दिन कुछ दिन पहले ही एक कॉन्वर्सेशन मेरा आर्यन के साथ, बिलाल विद द टीम एट रेड चिलीज, कि हमें पता था कि वायरल होगा, लेकिन इस तरह वायरल होगा वो कभी सोचा भी नहीं था. सो इट्स अ लेसन टू बी लर्नड. आई थिंक इससे पहले फैंस जो थे मुझे दो चीज़, या तो नाम लेके पुकारते थे या एक दूसरा इमेज था मेरा, एस से शुरू होता है. मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो रात तक वही चलने वाला है. अभी वो डायलॉग का जिक्र होता है तो नो कंप्लेंट्स. आई एम वेरी हैप्पी. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you.